Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will study the next phase of cellular respiration, that is Krebs cycle or citric acid cycle. जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था कि सेलुलर रेस्पिरेशन के पहले स्टेप में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बन गए थे साइटोसोल में, और फिर हर पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुई थी और दो एसिटाइल कोएंजाइम ए बने थे. Now acetyl coenzyme A will enter the Krebs cycle. Acetyl coenzyme A enters a cyclic series of chemical reactions during which oxidation process is completed. पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बने, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए साइक्लिक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में एंटर होंगे. उस दौरान ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगी. दिस सीरीज ऑफ cyclic series of chemical reaction is known as Krebs cycle, after the name of biochemist who discovered. इसको Krebs cycle इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये मेटाबॉलिक पाथवे सर हैंस क्रेब जो बायोकेमिस्ट था उसने डिस्कवर किया, और इसका दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है. Krebs साइकिल कहां होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए enters cyclic series of chemical reactions during which oxidation is completed. This cyclic series of reaction in which each enzyme is catalyzed by each step is catalyzed by different enzyme is called Krebs cycle because of its discoverer Sir Hans Krebs. It is also called citric acid cycle or it takes place in the mitochondrial matrix. Now, what are the reactions which are involved in the Krebs cycle? First of all, synthesis of citrate. In the first step of cycle, there is reaction of acetyl coenzyme A with oxaloacetate to form citrate. एक already occurring compound होता है oxaloacetate, which is a 4-carbon compound. Acetyl coenzyme A जो पायरुवेट से बना है, ये oxaloacetate के साथ कंबाइन करता है. क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम ए 2-कार्बन कंपाउंड है और oxaloacetate 4-कार्बन कंपाउंड है, इस रिएक्शन के नतीजे में सिट्रेट जो कि 6-कार्बन कंपाउंड है वो बनता है. वाटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड एंड कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड. तो पहले स्टेप में, जिसको मैंने सिंथेसिस ऑफ सिट्रेट का नाम दिया, acetyl coenzyme A combine with the oxaloacetate to form citrate. In this reaction, water is used and coenzyme A is released. Oxaloacetate is 4-carbon, whereas citrate is 6-carbon. Then next step, citrate changes to its isomer isocitrate. एनर्जी के हवाले से कोई इतना इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं है. सिट्रेट बाद में
आइसोसिट्रेट बन जाता है। देन थर्ड स्टेप में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। Oxidative decarboxylation of isocitrate to alpha ketoglutarate. Isocitrate, which is a 6-carbon compound, one carbon is removed in the form of carbon dioxide, decarboxylation हो गई। Isocitrate जो 6-carbon compound है, इसमें से 1 carbon is removed in the form of carbon dioxide, decarboxylation हुई। At the same time, isocitrate also undergo oxidation. It releases hydrogen. This hydrogen is received by NAD, which is then reduced to NADH. And the product of the reaction is alpha ketoglutarate, which is a 5-carbon compound. अगर हम देखें आसान लफ्जों में हम ये बात कर सकते हैं, आइसोसिट्रेट undergo oxidative decarboxylation to produce alpha ketoglutarate, or NAD is reduced to NADH. This is the first oxidation step in the Krebs cycle, and this is NAD mediated oxidation. Krebs cycle में 4 oxidation step होते हैं। ये पहला स्टेप है जहां ऑक्सीडेशन हुई है, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना, और ये NAD mediated oxidation है क्योंकि यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो NAD है, जो NADH में रिड्यूस हो जाता है। तो थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेप में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारेट। जैसे मैंने कहा कि आइसोसिट्रेट 6-carbon कंपाउंड है, इसमें से 1 carbon इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एट द सेम टाइम इसकी ऑक्सीडेशन भी होती है, ये हाइड्रोजन रिमूव करता है और आइसोसिट्रेट चेंज हो जाता है इनटू अ 5-carbon कंपाउंड जिसको कहते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट, और जहां NAD is reduced to NADH. Then fourth step में again oxidative decarboxylation होती है of ketoglutarate to succinyl coenzyme A. Oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate to succinyl coenzyme A. किस तरह से ये रिएक्शन है, क्या लिखेंगे? Alpha ketoglutarate, which is a 5-carbon compound. 1 carbon is removed in the form of carbon dioxide, decarboxylation होती है. Then it also undergo oxidation, releases hydrogen. These hydrogen are taken up by NAD, which are reduced to NADH. At the same time, coenzyme A is also used here, and the product of the reaction is succinyl coenzyme A. बहुत ही नपे हुए अल्फाज में बात करनी हो तो हम सीधी सी बात कर देंगे, अल्फा कीटोग्लूटारेट undergo decarboxylation and oxidation and produce succinyl coenzyme A. Coenzyme A is used and NAD is reduced to NADH. This is the second oxidation step in the Krebs cycle, and this is again NAD mediated oxidation. Fourth step ये था oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate into succinyl coenzyme A. मैं एक दफा फिर बात कर लेता हूं, अल्फा कीटोग्लूटारेट जो 5-carbon कंपाउंड है, 1 carbon इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई. देन कीटोग्लूटारेट आल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन,
releases hydrogen which are taken up by NAD to produce NADH. Coenzyme A is also used, and the product of the reaction is succinyl coenzyme A. Then fifth step में conversion of succinyl coenzyme A to succinate. जो succinyl coenzyme A पिछले स्टेप में बना, it remove its coenzyme A and is converted into succinate. Succinyl coenzyme A remove करके succinate में convert हो जाता है. और याद रखें, this is the only step in the Krebs cycle where free energy is released. इस स्टेप के दौरान फ्री एनर्जी रिलीज होती है, and this energy is released to convert GDP and inorganic phosphate to a molecule of GDP. जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है तो फ्री एनर्जी रिलीज होती है. वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो जीडीपी, गानोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को मिलाकर जीटीपी बना देती है. एरोहेड टू वर्ड जीटीपी होगा. और जब जीटीपी ब्रेक होता है इनटू जीडीपी या इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देती है. इस बात को हम कैसे लिखेंगे, मैं रिपीट कर देता हूं. सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट. Coenzyme A is released. The free energy released during this step is used to convert GDP and inorganic phosphate to GTP, or one GTP is used to produce one ATP. और याद रखें, this is the only step in the Krebs cycle where free energy is released, where ATP is produced. जो डायरेक्ट ATP Krebs cycle में बनते हैं वो बहुत इसी स्टेप में होता है जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा. देन ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट. सिक्स स्टेप में सक्सिनेट जो 4 कार्बन कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन होती है. वो हाइड्रोजन रिमूव करता है. वो हाइड्रोजन FAD, फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, F से फ्लेवन, A से एडेनिन, D डाइन्यूक्लियोटाइड. सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन होगी. सक्सिनेट हाइड्रोजन रिमूव करता है. वो हाइड्रोजन FAD ले लेता है और FADH2 बन जाता है और प्रोडक्ट रह जाती है फ्यूमारेट, 4 कार्बन कंपाउंड. हम कैसे लिखेंगे? सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्यूमारेट. But here the oxidizing agent is not NAD. Here oxidizing agent is FAD, which is reduced to FADH2. This is the third oxidation step, and this is FAD mediated oxidation. या oxidizing agent जो है वो FAD है. जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है तो कोएंजाइम FAD इस्तेमाल होता है और वो FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है. 7th step में conversion of fumarate to malate. Fumarate is converted into malate. दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है और molecule of water is used. Release, sorry. Conversion of fumarate to malate occurred in the presence of molecule of water. ये वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा. एरोहेड टू वर्ड्स इस तरफ को होगा, वाटर की तरफ नहीं होगा. यहां वाटर जो है वो यूज होना. फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड इनटू मैलेट. देन आखिरी स्टेप, ऑक्सीडेशन ऑफ मैलेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, which will repeat the cycle. Malate undergo oxidation, yani it remove hydrogen which are taken up by NAD, and NAD is reduced to NADH, and the product of the reaction is
oxaloacetic acid, which is a 4-carbon compound. This oxaloacetic acid, the oxaloacetate, will repeat the cycle again, will combine with acetyl coenzyme A to repeat the cycle again. So finally, malate undergo oxidation and produces oxaloacetate again. ये 8 रिएक्शंस होते हैं, साइक्लिक रिएक्शंस हैं, इसलिए हमारा बुक वाला यूं शो करेगा। जैसे हमने कहा, एक पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ, पायरुवेट ने हाइड्रोजन रिमूव किए जो NAD ने ले लिए और बन गया NADH, और द प्रोडक्ट थी एसिटाइल कोएंजाइम A, और कोएंजाइम A यहां यूज हुआ। ये कल हमने पढ़ा था कि पायरुवेट से किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम A बना। तो जैसे हमें पता है एसिटाइल कोएंजाइम A 2 कार्बन कंपाउंड है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा। पहले से मौजूद एक कंपाउंड है ऑक्सैलोएसीटेट 4 कार्बन, ये 4 कार्बन एसिड ऑक्सैलोएसीटेट 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A के साथ मिलता है, तो इस रिएक्शन के नतीजे में 6 कार्बन सिट्रेट बनता है, वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, कोएंजाइम A रिलीज होगा। सिट्रेट अगले स्टेप में चेंज होकर आइसोसिट्रेट बन जाएगा, और फिर आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, कार्बन रिमूव हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, आइसोसिट्रेट की ऑक्सीडेशन होगी जिसको NAD, इसके हाइड्रोजन NAD लेकर NADH बन जाएगा, और रिएक्शन की प्रोडक्ट हो जाएगी अल्फा कीटोग्लूटारेट। यानी आइसोसिट्रेट अंडरगो decarboxylation and oxidation into alpha ketoglutarate. First oxidation step, that is NAD mediated oxidation. Then alpha ketoglutarate, which is a 5 carbon compound, undergo another decarboxylation and oxidation and changes into succinyl coenzyme A. Here coenzyme A is used. Then the second NAD mediated oxidation thing. Succinyl coenzyme A then changes into succinate. Coenzyme A is released, free energy is released, and this free energy is used to convert GDP into GTP, and 1 GTP is used to produce 1 ATP. Succinate oxidizes into fumarate, but here the oxidizing agent is FAD, which is changed into FADH2. Fumarate becomes malate by accepting a molecule of water. Or finally, malate undergo final oxidation step into oxaloacetate. और यहाँ अगेन malate ने हाइड्रोजन रिमूव किए जो NAD ने ले लिए और वो NADH बन गया. और this oxaloacetate will repeat the cycle again. And this is the 4th oxidation step, or which is NAD mediated oxidation. ये Krebs cycle के ओवरऑल रिएक्शंस थे। हमारी बुक वाले ने कुछ स्टेप्स छोड़े हैं, मैंने भी सारे स्टेप नहीं लिखे, लेकिन एनर्जी के हवाले से जितने इंपॉर्टेंट स्टेप थे वो हमें लिखने पड़ेंगे। कंक्लूजन ये बनती है, as one molecule of glucose produces 2 pyruvate in the glycolysis. ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में हमने एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाए थे, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेंगे। इसका मतलब एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब्स साइकिल होंगे, और इसका मतलब यह भी हुआ कि जब when one glucose after Krebs cycle will yield 6 NADH, क्योंकि एक Krebs cycle में 3 NADH बनते हैं, 2 Krebs cycle होंगे तो 6 NADH होंगे, 2 FADH2 प्रोड्यूस होंगे Krebs cycle में, एक Krebs cycle से एक और 2 Krebs cycle से 2, और 2 ATP प्रोड्यूस होंगे। इसके साथ 4 जगहों पे
4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। तो ये NADH जो क्रैब्स साइकिल में बने हैं, और इवन के जो NADH हमें पायरुवेट की ऑक्सीडेशन से मिले हैं, और हमें ग्लाइकोलिसिस से जो ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो हमें NADH मिलेंगे, ये NADH जो ग्लाइकोलिसिस में मिले हैं, जो पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से मिले हैं, और अब जो 6 NADH क्रैब साइकिल से मिले हैं, और इसके साथ साथ जो FADH2 हमें क्रैब साइकिल से मिले हैं, ये भी ATP जनरेट करेंगे मजीद, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान जो अगला प्रोसेस होगा सेल रेस्पिरेशन का, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहेंगे, उसमें जाकर ये NADH और FADH2 जितने भी ओवरऑल हमारे पास इस वक्त तक प्रोड्यूस हो गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर मजीद ATP प्रोड्यूस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।